کشش عشق از قلم سمیہ راشد۔ وہ گاڑی میں بیٹھی کچھ بڑبڑا رہی تھی کہ فون کا چمکتا ہوا سکرین اسے جھٹکا دے گیا۔ او خدایا، میں کیسے بھول گئی! سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا ڈرائیور انکل، گاڑی ذرا علینا کے گھر کی طرف موڑ لیں پلیز، جلدی۔ البتہ وہ بہت آگے نکل رہے تھے لیکن واپس جانا پڑا۔ گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی۔ یار حد! اندر آتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ یار وہ ڈرائیور انکل بھول گئے تھے تمہیں لینا، شیزا نے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے کہا جسے وہ پہلے بتا چکی تھی کہ اسے اپنی جان بچانی ہے۔ ہاں تم تو جیسے سو رہی تھی، علینا نے طنزیہ انداز میں گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا نا اب چھوڑو بھی یار، اسائنمنٹ دکھاؤ اپنا۔ اور اس طرح وہ علینا کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب ہو گئی۔ چل یار کلاس سے باہر چلتے ہیں، دم گھٹ رہا ہے میرا اوپر سے تم لوگوں کی بکواس، اف۔ ہاں چل۔ شمائم بھائی کا کلاس میں دل نہیں لگ رہا بھائی، اذہان نے شمائم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ جگ سونا سونا لگے کوئی نہ رہے تب اپنا۔ شمائم نے بھی اپنا حق ادا کیا۔ وہ دونوں پچھلے آدھے گھنٹے سے شہباز یعنی شیزی کو تنگ کیے جا رہے تھے۔ شیزی غصے میں اٹھا اور ان دونوں نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ یار جلدی چلو کہیں بیٹھ کر اسائنمنٹ صحیح کر لوں۔ اور شیزا نے کہا دیکھ لو، میں نہ ہوتی تو آج تمہارے اسائنمنٹ کے مارکس جاتے۔ علینا نے فخریہ انداز میں کہا ہاں ہاں چلو اب۔ وہ دیکھ بھائی آ گئی آپ کی ایک طرفہ محبت، اذہان نے شیزی کو شیزا کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر وہ تو پہلے ہی ہوش سے بیگانہ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ بلو اسکارف میں بازو پر چادر ڈالے اپنی کتابوں کو سنبھالتے ہوئے جلدی جلدی میں بدحواس لیکن انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شیزا یار دیکھ پھر گھورنے لگ گئے تینوں بندر، علینا نے اسے آگاہ کیا۔ دفع کرو ان ٹھرکیوں کو، کہتے ہوئے نظریں جھکائے وہاں سے کلاس کی جانب چل دی۔ اب ہم بھی چلیں کلاس میں مسٹر عاشق، اذہان نے شہباز کو ہلاتے ہوئے کہا جو ابھی تک وہیں دیکھ رہا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے شیزا تھی۔ چلو بھائی آج کا دن تو اللہ اللہ کر کے گزر گیا، اب جا کر میں آرام کروں گی۔ شکر ہے سر نے آج کوئی اسائنمنٹ نہیں دیا، علینا سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی لیکن مخاطب شیزا سے تھی جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ او ہیلو میڈم، میں اتنی دیر سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ ہیں جو کہیں اور ہی گم ہیں۔ اس کی آواز سے شیزا خیالوں کے سمندر سے باہر آئی۔ ہاں کیا ہوا، کیا کہہ رہی تھی تم؟ کچھ نہیں، چلو اب۔ بھائی اسے آتا دیکھ۔ الماس اس کی طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ میری پیاری بہن کیسی ہو؟ شہباز نے اس کے گال کھینچتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب چھوڑیں، یہ بتائیں گفٹ کیا لائے ہیں؟ وہ جو ابھی گھر کی سجاوٹ کیوں کر رہی ہیں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دم سے اسے الماس کی بات سے یاد آیا کہ آج اس کی اکلوتی بہن کی برتھ ڈے ہے۔ گفٹ وہ تو سرپرائز ہے نا، شام میں دوں گا۔ ہاں شام میں ہی دوں گا۔ شام کا بہانہ بناتے ہوئے وہاں سے روم سے بھاگا اور جاتے جاتے امی کو سلام کرنا نہیں بھولا تھا۔ ہاں وہ گھر آتے ہوئے سب سے ملنے کے بعد تھک کی ہاری بیڈ پر گر پڑی۔ بیٹا شیزا بتاؤ کون سا ڈریس نکالوں تمہارے لیے؟ جو بھی ابھی کچی نیند میں تھی خالدہ بیگم کی آواز سن کر اٹھ گئی۔ ہم کہیں جا رہے ہیں ماما؟ ہاں بیٹا، تمہارے بابا جان کے دوست ہیں نا، ان کی طرف جا رہے ہیں۔ کون سے دوست؟ سامنے سے سوال آیا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی نئی کولیگ ہے ماما، میرا جانا ضروری ہے کیا؟ کہتے ہوئے واپس لیٹ گئی۔ ہاں بالکل، ہم دونوں بھی جا رہے ہیں۔ کیا کرو گی اکیلے گھر میں؟ تم بھی چلو ورنہ میں بھی وہاں بور ہو جاؤں گی۔ اچھا میں یہ ڈریس نکال دے رہی ہوں، تیار ہو جانا وقت پر، کہتے ہوئے باہر چل دی۔ شیزا نے محض سے کام چلایا۔ یار بڈیز تم دونوں آ جانا، آج چھوٹی کی برتھ ڈے ہے، بس یہی بتانا تھا، بہت کام ہے یار، بعد میں بات کرتا ہوں۔ فون بند کرتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش وہ بھی آ جائے، پھر مسکرا کر سر جھٹکتا ہوا گفٹ لیے نکل گیا۔ گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی جو بہت ہی شاندار طریقے سے سجا ہوا تھا۔ نیوی بلیو کلر کے فراق میں بال کھلے سانولی رنگت والی لڑکی کسی نازک گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہیلو مسٹر اینڈ مسز برہان، مسٹر علی نے انہیں ریسیو کیا۔ آئے میں آپ کی اپنی فیملی سے ملاتا ہوں۔ تو یہ رہی میری اکلوتی بیگم، مسٹر علی نے اپنی وائف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ آ رہی میری پیاری بیٹی الماس۔ السلام علیکم۔ الماس اور مسز علی نے مسٹر اور مسز اذہان کو سلام کیا۔ بابا وہ چاچو کی فیملی آ گئی۔ آواز سن کر شیزا کی سانسیں ایک دم سے رکی، دھڑکنوں میں تیزی آ گئی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے آتا ہوا کوئی حسین شہزادہ لگ رہا تھا، یا شاید اسے وہ بھانے لگا تھا۔ لو آ گئے صاحبزادے بھی، علی نے شہباز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کی نظریں موبائل میں جمی ہوئی تھیں۔ نظریں اٹھاتے ہی اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے، اپنی قسمت پر رشک کرے، اپنی بیوقوفی پر ماتھا پیٹے۔ جس نے اس لمحے یہ کیوں سوچا نہیں کہ وہ کاش ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ بیٹا سلام کرو انکل کو۔ السلام علیکم انکل۔ خوشی کے مارے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اچھا چلو انکل کی فیملی کو بٹھاؤ، میں آتا ہوں چاچو سے مل کر، کہتے ہوئے مسٹر علی وہاں سے
चल दिए। इस पूरी पार्टी के दौरान शीज़ा गुमसुम सी बैठी रही। अलबत्ता शेज़ी की तो खुशी की इंतहा नहीं थी। उन्होंने शीज़ा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो थी एक जगह मुंह बंद करके बैठ गई थी। या अल्लाह, वो क्यों बार बार मेरे सामने आ जाता है? क्यों बार बार तकदीर उसे मेरे सामने ला खड़ा कर देती है? अल्लाह ताला, आप तो जानते हैं ना कि मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। प्लीज़ अल्लाह, उसे मुझसे दूर रखें। वो रोते हुए अपने रब के आगे गिड़गिड़ा रही थी, ऐसे दुआएं मांग रही थी जैसे वो अल्लाह से बातें कर रही हो। न जाने क्यों, लेकिन वो खुद को हमेशा इस शख्स से दूर रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी मोहब्बत किसी ऐसे शख्स पर लुटा दे जो उसे नहीं मिलेगा। वो खुद को अपने महरम के लिए पाक रखना चाहती थी, मगर उस शख्स में कोई ऐसा जादू था जो उसे खुद की तरफ खींच रहा था। एक तरफ वो इससे दूर होने की दुआएं कर रही थी, तो दूसरी तरफ शहजी जो शुक्राने की नवाफिल अदा कर रहा था। अल्लाह पाक देखे, मैं जानता हूँ ये सब गलत है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मोहब्बत हो गई है मुझे उससे। आप तो जानते हैं ना मेरे दिल का हाल, आप उसे मेरा कर देना प्लीज़। अल्लाह पाक प्लीज़। वो बच्चों की तरह अल्लाह से उसे मांग रहा था। आज इत्तेफाक से दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी पहुंचे और गेट पर ही आमना सामना हो गया। शहबाज की तो जैसे ईद हो गई, लेकिन शीज़ा का मुंह बन गया कि वो जितना इससे दूर जाना चाहती है, किस्मत उसे उतना ही करीब ले आती है। ओए होए भाई, लग रहा है किस्मत आज कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई है आप पर। हस्बे मामूल अजहान ने उसे छेड़ा और फिर क्लास की जानिब चल दिए। कल आप आई, बहुत खुशी हुई। क्लास से फारिग होकर बाहर निकलते हुए उसने शीज़ा से बात करने की कोशिश की। शीज़ा जो अलीना के ना आने की वजह से पहले ही उन लोगों से डरी हुई थी और सहम सी गई और हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए वहाँ से भागी। अल्लाह पाक, जो मेरी किस्मत में नहीं मुझे उससे दूर रखो। न जाने क्यों हर नमाज में उससे मुतालिक दुआ करती। फ़ोन की रिंग सुनते ही उसने अपनी दुआ मुख्तसर की और जय नमाज समेटा। क्या हुआ आज, कैसा गया दिन? सर ने और असाइनमेंट दिए। उसके फ़ोन रिसीव करते साथ ही अलीना शुरू हो गई थी। अरे भाई रुको तो, सांस तो ले लो। शीज़ा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कल का सीन भी बताना है? और फिर कल की पार्टी के मुतालिक उनकी गुफ्तगू शुरू हो गई। इस प्रोजेक्ट में शीज़ा, शहबाज, रीदा, शुमाइम का फर्स्ट ग्रुप होगा। क्लास टीचर ने अपना फैसला सुनाया और अलीना, अजहान, ऐशा का दूसरा। इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए। ऐशा जो अजहान की कज़न के साथ साथ उसकी मंगेतर थी, उसका मुँह बन गया क्योंकि उसे पता था कि अजहान के सारे काम उसके हिस्से में आने हैं। पर सर, परवर कुछ नहीं। शीज़ा बैठ जाएं, टीचर ने उसकी बात काटते हुए कहा। शीज़ा का मुंह बन गया। हाँ अलबत्ता शहजी शहबाज तो आज सातों आसमान में उड़ रहा था। तो चलें शीज़ा, शुमाइम, रीदा लैब में। शहजी ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा और फिर सब चल दिया। और आप सब अपना नंबर दें, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाना है। शुमाइम ने कहा। आखिरकार मजबूरन न चाहते हुए भी उसे नंबर देना पड़ा। दिल गुजरते गए और वो लोग अपने प्रोजेक्ट पर भरपूर काम कर रहे थे। हाँ अलबत्ता रोज़ का गुजरता दिन शीज़ा और शेज़ी के लिए एक नया मोड़ ले रहा था। इस दौरान रीदा शेज़ी से बहुत फ्री हो गई थी और शेज़ी का किसी काम से एक दो दफ़ा शीज़ा के घर आना जाना भी हुआ था। इस तरह अब शीज़ा के लहजे में शेज़ी के लिए थोड़ी नरमी आ गई थी। पता नहीं क्या समझता है खुद को, पागल कहीं का। वो बड़बड़ाने के अंदाज में बोली जा रही थी। अरे हुआ क्या है शीज़ा? अलीना, जो काफ़ी देर से उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी, उसने कहा। तुम भी बदतमीज़ हो। शीज़ा ने गुस्से में नाराज़गी ज़ाहिर की। अलीना चलते चलते एकदम से रुक गई। उसे लगा शीज़ा पागल हो गई है। वाह भाई वाह, मैंने क्या कर दिया? अब बताओगी? भी आगे बढ़कर शीज़ा का रास्ता रोकते हुए कहा। मैं क्या बताऊं? बताया तो तुमने है, वो भी गलत। मैंने क्या बता दिया भाई? अलीना ने हैरानगी से पूछा। तुम ही तो कहती थी ना कि वो बंदर शहरी मुझे पसंद करता है। अब जाकर देखो कैसे हंस हंस के रीदा से बातें कर रहा है। मैं तो जो कहती हूँ वो तो साहबजादे को बड़ा गलत ही लगता है। हाँ हाँ, लगेगा ही। आखिर में उसकी बेस्टी के खिलाफ जो कह रही थी, वो रीदा से उसकी और शहजी की दोस्ती की वजह से जलने लगी थी। तुम रीदा से जेलस हो रही हो? अलीना ने कहा। मैं और इस बंदरिया से जलूं? हाँ तो ऐसा क्यों कह रही हो फिर? यार तुम अपने खाली दिमाग पर इतना जोर नहीं डाला करो। शीज़ा ने अलीना के सर पर हाथ रखते हुए कहा। क्या मतलब? तुम्हारा पागल तो नहीं हो गई हो? अलीना ने कहा। छोड़ो, होने दो, इनकी दोस्ती हमें क्या? शीज़ा ने सर झटकते हुए कहा, जबकि अलीना को अभी तक उसके गुस्से की असल वजह समझ नहीं आई। चलते चलते शीज़ा किसी सोच में गुम हो गई, जबकि अलीना ने चुटकी बजाकर उसे मुखातिब किया। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं यार, छोड़ो, दफ़ा करो, कैंटीन चलो। शीज़ा कहते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ गई। यार तू रीदा को ऐसे क्यों कहता है? हंसते हंसते उसकी बेइज्जती कर देता है। शुमाइम ने कहा। जब शाम को तीनों हस्बे मामूल साथ थे, तुझे बड़ा बुरा लग रहा है? शेजी ने उसे छेड़ते हुए कहा। आओ यार चलो फिल्म देखते हैं, अजहान ने कहा, जो एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में मोबाइल लिए मगन था। नहीं भाई, मुझे नहीं देखनी, दिल नहीं चाह रहा, शेजी ने कहा। हाँ चाहेगा भी कैसे, दिलो दिमाग में किसी और का बसेरा जो है, अजहान ने छेड़ते हुए कहा। हाँ तू तो जानता ही है जैसे तेरे दिलो दिमाग में ऐशा है। शेजी ने अजहान के पेट में पंच मारते हुए कहा, जिसके हाथों से चाय गिरते गिरते बची। तौबा कर भाई, मैं तुम लोगों
والے کام نہیں کرتا۔ وہ تو دادی کو پتہ نہیں کیا سوجی تھی جو اسے میرے متھے لگا گئی۔ اذہان نے کہا ہاں ہاں، اور تو نے خوشی خوشی ایکسیپٹ بھی کر لیا؟ ہاں تو اور کیا کرتا، ویسے تو اچھی بھی اپنے ساتھ میرے اسائنمنٹ بھی بنا ہی دیتی ہے، بس تھوڑا سا مسکا لگانا پڑتا ہے۔ اذہان نے ہنستے ہوئے کہا اور دونوں ہنس دیے۔ ایکسکیوز می، میں یہاں کچھ کہہ رہا تھا، شمائم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں بیٹی بول لو شیزی، چپ کرو، وہ کچھ بولنا چاہ رہا ہے اور تم ہو کے بولے جا رہے ہو۔ اذہان نے اپنی ٹوپی شیزی پر ڈال دی جو محض اسے گھور کر رہ گیا۔ اب میں بول لوں؟ شمائم نے تنگ آتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بولو، شیزی نے کہا۔ یار تو ایسے بات نہیں کیا کر، اس سے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ شمائم اب بھی سیریس تھا۔ اف، اسے تو برا لگتا ہی نہیں، تجھے لگ جاتا ہے، شیزی نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ لو بھائی، ایک اور لو برڈ کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اذہان نے کہا اور تینوں ہنس پڑے۔ ویسے بھائی میں تو کہتا ہوں شیزا کو چھوڑ کسی اور کو ڈھونڈ لے، اذہان نے شیزی کو ہنستا دیکھ کر اسے چھیڑا۔ یہاں میرا کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا اور تو کسی اور سے دوستی کرنے کا کہہ رہا ہے، شیزی نے اسے کاٹ دھار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور یہ محترم کا دل کیوں نہیں چاہتا؟ شمائم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بتاؤں کیوں؟ کیونکہ مجھے ایک ہی لڑکی سے محبت ہے، اور اصل محبت یہی ہے کہ جب آپ کا اس کے علاوہ کسی اور سے بات کرنے کا بھی دل نہ چاہے، آپ کو لگے کہ کہیں اس کی محبت میں خیانت نہ ہو، حالانکہ آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ شاید وہ میری قسمت میں نہیں، لیکن دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہوئے اس کے لیے آپ خود کو پاک رکھیں اور اسے رب سے مانگتے رہیں۔ ہاں یہی اصل محبت ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بغیر پلک جھپکاتے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہتا جا رہا تھا۔ یہ تو سیریس ہو گیا بھائی، اذہان نے شمائم کے کندھے پر موبائل والا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو شہری کی بات مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ ہاں پکا مجنوں لگ رہا ہے، شمائم نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شیزی کی بات ختم کرتے ہوئے اذہان نے کہا، یار یہ تو سچا عاشق نکلا بھائی، واہ واہ واہ، عامر بھائی والا واہ واہ۔ شمائم نے اذان کی واہ واہ میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، بدتمیزوں مذاق بنا رہے تھے نا میرا شیزی؟ ان دونوں کی طرف لپکا اور ان دونوں نے ہنستے ہوئے دوڑ لگا دی۔ روز کی طرح آج بھی جائے نماز میں بیٹھی اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ، کیا میں واقعی ریدا اور شہباز کی دوستی سے جلنے لگی ہوں؟ اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو اس سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ کیوں وہ میرے دل میں اپنا مقام بناتا جا رہا ہے؟ کیوں کہ وہ مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جس کی وجہ سے میرا دل اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے؟ میری اتنی بے رخی کے بعد بھی وہ مجھ سے دور نہیں ہوتا۔ اللہ پلیز، جو میری قسمت میں نہیں اسے مجھ سے دور کر دیں۔ وہ آج بھی اس کی وجہ سے رو رہی تھی اور بے انتہا رو رہی تھی۔ نہ جانے یہ نظریں کیوں پریشان تھی، وہ کسے ڈھونڈ رہی تھی؟ آج دل بہت بجھا بجھا سا تھا۔ آج الینا کی باتیں بھی اسے بہلا نہیں سکیں۔ آج اسے یونیورسٹی نہ آنے ہوئے پورے 2 دن ہو گئے۔ شیزا کی بات پر الینا نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ الینا نے شیزا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پاگل ہٹو یہاں سے، شیزا نے الینا کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ مس کر رہی ہو اسے؟ الینا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں کیوں مس کرنے لگی؟ ریدا کو دیکھا تھا، آج عائشہ کے ساتھ تھی، ورنہ تو اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ہاں تو عائشہ بھی تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، الینا نے بے فکری سے چپس کھاتے ہوئے کہا۔ یار وہ اذہان کی منگیتر پلس کزن ہے، لیکن ریدا تو نہیں ہے نا کچھ ان لوگوں کی، شیزا نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہو رہا ہے تجھ کو تو پیار سجنا، الینا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ شیزا نے اسے غور سے گھورا اور اس کے ہاتھوں سے چپس کی پیکٹ لے کر غصے سے کھانے لگی۔ الینا اس کی اس حرکت پر مسکرا دی اور شیزا کی دل کی بات سمجھ آ گئی۔ برو کیسے ہو اب، اور طبیعت کیسی ہے؟ شمائم نے شیزی سے پوچھا۔ ہاں بھائی بتاؤ، پتہ ہے آپ کے دل کی منسٹر بھی آپ کو مس کر رہی تھی۔ اذہان نے حسب معمول گھما پھرا کر شیزی کو چھیڑا، جو آج پورے 3 دنوں کے بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ ہماری ایسی قسمت کہاں کہ وہ ہمیں یاد کرے، ہمارا تو عشق ہی یک طرفہ ہے، شیزی نے افسردہ انداز میں کہا۔ بس شروع ہوا اس کا مجنوں پن، اذہان نے سیریس انداز میں کہا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ رک گئی، اس کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاں البتہ چہرہ تاثرات سے پاک تھا۔ کہاں تھے تم؟ کوئی پرواہ ہے پروجیکٹ کی؟ اب بتاؤ ایک دن میں کیسے مکمل ہوگا کام؟ شیزا سامنے کھڑی شیزی کو بغیر سانس لیے کہتی ہی جا رہی تھی۔ ہاں اب تو پروجیکٹ کی ہی پرواہ ہوگی میڈم، ہم جیسوں کی کون پرواہ کرتا ہے؟ خیر آپ فکر نہ کریں، میں مینیج کر لوں گا۔ شیزی کی بات پر وہ شاکڈ ہوئی، اس نے تو پوری بات بھی نہیں سنی، تو وہ تو پہلی ہی بات میں گم ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ ہاں وہ ریدا نہیں ہے تم سے تمہارا حال چال پوچھنے کے لیے، تو جاؤ اسے کہو یہ سب خیر۔ سوری، کیسی ہے طبیعت اب؟ الحمدللہ، تھوڑی بہت جو بھی خراب تھی اب صحیح ہو گئی۔ شیزی کہاں تھے تم؟ آئی مس یو یار، سامنے سے آتی ہوئی ریدا نے کہا، جس کے ساتھ عائشہ بھی تھی، آ گئی تمہاری بیسٹیز۔ کہتے ہوئے شیزا وہاں سے چل دی۔ اب کی باری شیزی شوق میں تھا، اس کے جاتے ہوئے ریدا اور باقی سب ہنس پڑے۔ ریدا نے شیزا کو تنگ کرنے کے لیے کہا تھا اور یہ بات سب جانتے تھے سوائے شیزا کے۔ ریدا ہمیشہ جان بوجھ کے شیزا کو جلانے کے لیے اس کے سامنے شیزی سے فری ہو کر باتیں کرتی تھی۔ اوہے جیلسی ہو رہی ہے بھائی بھابھی کو، اذہان نے کہا۔ ہاں بھائی، لڑکی پگھل گئی۔ شمائم نے بھی اپنا حق ادا کیا اور شیزی
فقط مسکراتا رہا۔ شیزا شیزا میری جان، ارے ارے کیا ہوا، بس بس گر جاؤں گی میں، شیزا نے خود کو سنبھالتے ہوئے علینا کو کہا، جو شیزا کے کلاس میں آتے ہی اسے خوشی سے پکڑ کر جھوم اٹھی تھی۔ بتاتی ہوں، بلکہ خود گیس کرو کیا ہوا ہوگا۔ علینا نے خوشی سے چلتے ہوئے کہا، وہ لوگ آئے تھے کیا؟ شیزا نے اندازہ لگایا، واہ یار، تم تو میرے ساتھ رہ کر سمارٹ ہو گئی ہو۔ علینا نے کالر اٹھاتے ہوئے شاہانہ انداز میں کہا، ویسے پتہ ہے اگلے ہفتے منگنی ہے میری، یاہو! علینا خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ پتہ ہے مجھے نا عمیر بھائی پر افسوس ہوتا ہے، شیزا نے افسردہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ علینا کی ساری خوشی بھگ سے اڑی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں بیٹا، وہ خوش قسمت ہیں کہ میری جیسی لڑکی ملی انہیں، علینا نے فخریہ انداز میں کہا۔ ویسے افسوس تو مجھے بھی کسی پر ہوتا ہے، علینا نے فوراً تاثرات تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ کس پر؟ علینا نے فوراً سے پوچھا۔ یار میری شیزی بھائی پر، بیچارے کس چٹان سے محبت کر بیٹھے، استغفار، دفع ہو جائیں آپ یہاں سے، علینا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آرام سے دیکھ لو کہیں دانت نہ ٹوٹ جائیں، کہتے ہوئے علینا اپنی سیٹ کی جانب چل دی اور شیزا بھی جا کر بیٹھ گئی۔ اللہ، کیا واقعی اس کا دل میرے لیے پگھل گیا؟ اللہ تعالیٰ، آپ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے تو اسے میری قسمت میں بھی ڈال دیں۔ ایسے تو وہ نماز پڑھتا ہی تھا، مگر شیزا کی محبت نے اسے اللہ سے باتیں کرنا بھی سکھا دیا تھا، اور رات کو کب اسے مانگتے مانگتے وہیں جائے نماز میں سو گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ شیزی کی والدہ نے صبح اسے ناشتہ دیتے ہوئے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ نہیں ماما، آئی ایم فائن، شیزی کی طرف سے جواب آیا۔ آج وہ اس کی دوست دونوں نظر نہیں آ رہی تھی۔ شیزی جو آج یونی لیٹ آیا تھا، اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا، ملکہ عالیہ آئی ہوں گی نا؟ تب نہ نظر آئیں گی، اذہان نے چیونگم چباتے ہوئے اپنی نظریں موبائل پر رکھے ہوئے کہا۔ پہلے بتا دیتا، میں بھی نہیں آتا، شیزی نے اذہان سے شکوہ کیا۔ ہمیں کیا پتہ تھا، تم بھی تو لیٹ آئے، ہمیں لگا نہیں آؤ گے اب کی بار، شمائم بول پڑا۔ یار بڑی، سوائے اس کے پوری یونی کو پتہ ہے تو اسے پسند کرتا ہے، تو اسے بول کیوں نہیں دیتا؟ آخر کب تک اس طرح چلے گا؟ اب تو یونی بھی ختم ہونے والی ہے ہماری، کل کو اگر اسے کوئی اور پسند آ گیا تو؟ اذہان نے شہباز کے سامنے بیٹھ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیسی منحوس باتیں کر رہا ہے، شیزی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو بول دینا، اسے سنا دے اسے اپنے دل کا حال، اذہان نے کندھا اچکاتے ہوئے کہا۔ ڈر لگتا ہے یار کہ اسے کہیں کھو نہ دوں، ابھی جو بھی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں اس سے محروم نہ ہو جاؤں، اور وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ کبھی اس طرح پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے شیزی چیئر سے ٹیک لگا گیا۔ یار تو اسے بولے گا نہیں تو اسے پتہ کیسے چلے گا؟ تو خود ہی سوچ، شمائم نے کہا۔ اسے تو مجھ سے محبت ہے نہیں، جو پتہ چل جائے گا، اور مجھ میں اسے کھونے کی ہمت نہیں، کہتے ہوئے شیزی اٹھ کھڑا ہوا۔ تو بھائی بول، ہم لوگ بات کر کے دیکھتے ہیں، اذہان بھی کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یار میں فی الحال کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اگر وہ میری قسمت میں ہے تو اسے مجھ سے محبت ہو جائے، اور اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو اللہ تیری قدرت میں کوئی کمی تھوڑی ہی ڈال دے اسے میرے حصے میں۔ اور پتہ ہے یار، میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، اور تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ دعا سے قسمت بھی بدل جایا کرتی ہے؟ تو بس اسی فرمان پر یقین کرتے ہوئے اسے مانگا ہے میں نے اپنے رب سے۔ شیزی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا جا رہا تھا، بھائی وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تجھے بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اذہان نے کہا۔ یار میں نے کہا نہیں کہ جب مجھے اس کی طرف سے لگے گا کہ اسے مجھ سے محبت ہے تو پھر میں اسے آگے بات کروں گا۔ وہ اب بھی آسمان کو گھورنے میں مصروف تھا۔ بیٹا تیار ہو جاؤ جلدی سے، خالدہ بیگم نے شیزا کو کپڑے دیتے ہوئے کہا۔ ماما میں کہیں نہیں جا سکتی، اسے میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج یونی بھی نہیں جا سکی، شیزا لیٹے لیٹے بغیر آنکھیں کھولے کہتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا میری شہزادی کو، دوا سے آرام نہیں ملا کیا؟ اب بھی سر درد ہو رہا ہے میری بیٹے کا؟ اندر آتے ہوئے برہان صاحب نے کہا۔ بابا کی آواز سنتے وہ اٹھی۔ نہیں بابا، اللہ کا شکر ہے اب بہتر ہے، طبیعت جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ بابا کی گڑیا، برہان صاحب نے شیزا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہو گیا دونوں باپ بیٹی کا پیار، تو ذرا آپ چلیں اور ناشتے کا سامان لے آئیں، خالدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی آ رہا ہے کیا ماما؟ ہاں بیٹا، تمہاری خالہ آ رہی ہیں، تبھی تو تمہارے ماما اتنا خرچہ کر رہے ہیں، برہان صاحب نے بیگم کو تپانے کے لیے مسکراتے ہوئے شیزا سے کہا۔ ہاں ہاں، آپ کی بہنیں آتی ہیں تو انہیں تو میں کھانے کا پوچھتی ہی نہیں، مسز برہان نے طنزیہ انداز میں الفاظ میں کہا، اور پھر تینوں ہنس پڑے۔ چلو بہت ہو گیا، اب جاؤ تیار ہو اور آپ آئیں، میں آپ کو لسٹ دیتی ہوں، کہتے ہوئے کپڑے بیڈ پر رکھا اور کمرے سے باہر کی جانب چل دی۔ برہان صاحب بھی باہر چلے گئے، شیزا بھی کپڑے اٹھائے باتھ روم کی طرف چل دی۔ الماس ریڈی ہو جاؤ، تمہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، مسز علی نے روم میں آتے ہی کہا۔ کیا لڑکے والے، اور مجھے کیوں دیکھنے آ رہے ہیں ماما؟ کیا مطلب کیوں آ رہے ہیں؟ شادی نہیں کرنی کیا تمہیں؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، الماس نے دور ہٹتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ گردن میں ہیڈ فون لٹکائے ڈرائی فروٹس منہ میں ڈالتے ہوئے اندر روم میں داخل ہوا۔ دیکھے نا بھائی، امی پتہ نہیں کس کو بلا رہی ہے، الماس نے شکایتی انداز میں کہا۔ وہ ایک دم سے چونکا، اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں شیزا کے گھر والے تو نہیں آ رہے؟ نہیں، پاگل ہو گیا ہے کیا وہ؟ کیوں آئیں گے؟ کون آ رہا ہے؟ امی جان اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ انہیں چھوڑو، تم جو بلا لٹکائی ہوئی ہے نا، دیکھنا وقت سے پہلے بہرے ہو جاؤ گے، مسز علی کہہ رہی تھی کہ شیزی نے
वहाँ से निकलने में ही अपनी आफियत जानी और रूम से निकलने लगा। भाई भाई सुने ना, सॉरी बहना, फ़िलहाल मुझे अपनी जान बचानी है, बाय कहते हुए वहाँ से गायब हो गया। मामा, अल्मास ने इल्तिजाई नज़रों से देखते हुए कहा, कोई मामा वामा नहीं, लड़का अच्छा है, तुम भी तो मिल चुकी हो। मिसेज़ अली ने कहा, मुझे शादी में जाना ही नहीं चाहिए था। अल्मास ने शिकायती अंदाज में कहा, तैयार हो जाना चुपचाप से कहते हुए वो भी किचन की जानिब चल दी। रीदा, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। हाँ बोलो शुमाइम, शुमाइम ने झिझकते हुए कहा। लेकिन रीदा ने नॉर्मली जवाब दिया, यार वो शुमाइम को समझ नहीं आ रही थी कैसे कहे, क्या वो कर रहे हो ना, कुछ गड़बड़ करके आए हो। रीदा ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं वो, भाई देखो इस बार मैं नहीं बचाऊंगी। रीदा ने हाथ झटकते हुए कहा, पिछली बार तुमने पूरा एससीएल गिरा दिया था, इस दफ़ा क्या गिरा कर आए हो। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं गिराया मैंने, तुम मुझे बोलने तो दो। अच्छा ना बको, रीदा ने हंसते हुए कहा, हम अगर नहीं कहा जा रहा तो हम बोल दें। अरे भाई बोल दे, उससे नहीं हो पाएगा। सामने से आते हुए अजहान और शेजी ने कहा, यार तुम लोग क्यों आ गए, हमेशा गलत वक्त पर ही आना। शुमाइम ने दांत पीसते हुए कहा, अरे हम गलत वक्त पर आए, देख यार शेजी, भलाई करने आए थे, लेकिन नहीं, उसे खुशी नहीं हुई यार, ये वही सीन हो गया, नेकी कर दरिया में डाल। शेजी ने अजहान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, यार रीदा कहाँ थी, तुम कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। सामने से आती हुई आयशा ने कहा, अबे यार इसने अभी आना था। अजहान ने चिढ़ते हुए आस्था से कहा, हाँ हाँ जा रही हो, मरो नहीं, अपनी दोस्त को लेने आई थी, जब देखो तब तुम्हारा दोस्त रोक लेता है मेरी दोस्त को। आयशा ने अजहान की बात सुन ली थी और अब उसे सुना रही थी, चलो यहाँ से। आयशा ने शीज़ा को खींचते हुए कहा, अरे रुको, शुमाइम कुछ कह रहा था, सुनो, अगर कुछ कहना है तो कैंटीन में आकर कहना। आयशा ने शुमाइम को मुखातिब करते हुए कहा और वहाँ से रीदा को लेकर चल दी। कराली बेइज्जती आ गया सुकून। शेजी ने अजहान से कहा, क्या यार मैंने क्या किया। अजहान ने कंधे उचकाते हुए कहा, यार ये बता, ये तेरी खाला की बेटी है, ये फुप्पो की। शुमाइम जो आयशा और रीदा को जाते देख रहा था, उसने कहा, अरे ना खाला ना फुप्पो, चाचू की बेटी है ये भला। अजहान ने कहा, घर में कैसे झीलता है यार तू। शुमाइम ने पूछा, मत पूछो यार, वैसे आज कुछ ज़्यादा ही है, पर नहीं थी। शेजी ने कहा, हाँ होना ही था, आज सुबह सुबह लड़ाई हुई थी हमारी। अजहान ने शर्माते हुए कहा, सही है, लड़ो लड़ो, इसलिए तो घर वालों ने मंगनी कराई थी ना। शेजी ने हंसते हुए कहा, हाँ दादी ने पता नहीं क्या सोचकर अम्मा आपा को हमारे रिश्ते के बारे में कह दिया। अजहान ने अफसुर्दा लहजे में कहा, तो तू है ही इसी काबिल, सही लड़की मिली है तुझे। शुमाइम ने अजहान को तंग करने के लिए कहा और फिर शेजी के हंसने पर वो दोनों भी हंस पड़े। हाँ शेजी हंसो खुद, तो शीजा से कहा नहीं जा रहा, हम बड़ा हमारा मजाक बना रहे हैं। हाँ याद आया यार, मैं ये फाइल शीजा को देकर आता हूँ, शेजी कहते हुए वहाँ से चल दिया। अजीब गधा है जंगली, आयशा गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अरे अरे तमीज़ से अपने मिजाजी खुदा को ऐसे नहीं कहते। रीदा ने उसके गले में नमक छिड़क दिया। बरए मेहरबानी आप अपने मिजाजी खुदा के बारे में सोचें। आयशा ने तपते हुए कहा, अरे आया नहीं अभी तक। रीदा ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, रीदा लो आ गया। शुमाइम की आवाज़ सुनकर आयशा ने कहा, हाँ बोलो। रीदा उठकर शुमाइम की तरफ बढ़ी। रीदा, विल यू मैरी मी। शुमाइम ने बगैर वक्त ज़ाय किए डरते हुए कहा, ऐसे करते हैं प्रपोज, इतना रूखा सूखा। रीदा ने शुमाइम के हाथ में रिंग के डब्बे को देखते हुए कहा, नहीं बस तुम हाँ बोल दो तो प्रपोज भी अच्छे से करूँगा। अम्मा नहीं मानेगी, रीदा ने ड्रामाई अंदाज में कहा। मान जाएंगे आंटी भी फिर मेरी हर बात मानती हैं, और ये बात तो उन्हें पता है पहले से। शुमाइम की बात ने उन्हें हैरत में डाल दिया। हाँ तो बचपन से मानती हैं मुझे, वो अब दामाद भी बनाने के लिए राजी हैं, चलो फिर हाँ कर देते हैं। रीदा ने मुस्कुराते हुए कहा, यार कल खाला आई थी। शीज़ा ने कहा, जब वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। हाँ कल बताया तो था, रिश्ते के लिए ना, क्या हुआ, बात पक्की हो गई। नहीं बात तो पक्की नहीं हुई, लेकिन रिश्ता पक्का ही समझो। शीज़ा जूस हाथों में लिए उसे खुशी खुशी बता रही थी। वाह कंग्रेचुलेशन यार, आई एम वेरी ग्लैड फॉर यू। एलिना ने खुशी खुशी कहा, शुक्रिया, लेकिन तुम तो अभी पूरी बात कह ही नहीं रही थी कि शीज़ा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बट ये फाइल्स कंप्लीट प्रोजेक्ट की हैं। वैसे मैंने देख तो ली है, मगर एक दफ़ा देख लेना आप भी। शेजी ने सर झुकाए, अपने जज्बात को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए कहा। शीज़ा ने सिर्फ सही कहकर बात मुकम्मल की। हाँ शीज़ा का दिल तो उसकी ज़ुबान से अपना नाम सुनकर जैसे रुक सा गया था। उसने पलट कर देखा तो रेड कलर की टी शर्ट पर ब्लू कलर का अपर पहना हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। धूप की किरणें उसके चेहरे को मजीद चमका रही थी। वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम अजहान को दे देना, वो सबमिट करा देगा। जाते हुए उसने पलट कर कहा। शीज़ा ने सर हिलाकर जवाब दिया और फिर वो वहाँ से चला गया। शीज़ा, वैसे ये बुरा तो नहीं है। अलीना ने कहा, हाँ वैसे है तो अच्छा। शीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बनू मेरी चली ससुराल वे। अलीना ने शीज़ा को छेड़ते हुए कहा, भला भला बेटा, हर कुछ शक्ल व सूरत से नहीं होता, ज़िंदगी गुजारनी है, पूरी नस्ल ख़ानदान सब देखना पड़ता है, समझी। शीज़ा ने कहा, वाह भाई वाह, हमारी दादी अम्मा सही कहा आपने। वैसे एक बात तो बताओ। हाँ कहो। अलीना के सवाल पर शीज़ा ने फ़ौरन से कहा, तुम्हें वो अच्छा लगने लगा है ना। शीज़ा ने अलीना के जवाब में बस उससे घूरा, अरे अरे मेरी सादी सीधी अम्मा, ओह सॉरी दादी अम्मा, हमसे क्या शर्माना है। हाँ
शर्माना यार, चल मेरा बेटा बताना शुरू हो जा। अलीना, इस्तगफार पढ़ो यार, चलो चलो ना बताओ तुम, मुझे पता है कैसे आपके दिल उसके लिए एक्साइटेड होता है। तौबा। शीजा ने तौबा कहते कहते उसको एक पंच मारा। अरे अरे मासूम, लड़की देखी नहीं और तशद्दुद शुरू कर दिया। जालिम ज़माना। अलीना ने मासूम बनने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, शेजी बेटा तुमसे कुछ बात करनी है। शहबाज के अंदर आते ही उसकी अम्मी ने उसे रोका। मामा अभी नहीं, बहुत थका हुआ हूँ, शाम में करेंगे, कहते हुए कमरे में चला गया। आज फिर वो टूट सा गया था, उसे अपना वजूद बिखरा हुआ लग रहा था। उसने आज अपने रब से खूब शिकवा किया, उससे बातें की। वो मर्द था और ऐसा मर्द जिसकी आंखों से किसी चीज़ को पाने के लिए कभी आंसू नहीं गिरे, लेकिन उस लड़की की चाहत ने उसे रब ताला के बहुत करीब कर दिया। वो इसे पाने के लिए अल्लाह से रजू करता था। हालांकि अगर वो चाहता तो वो खुद भी कह सकता था, लेकिन वो एक सही वक्त की तलाश में था कि जब शिजा उसे मोहब्बत ना सही दोस्ती ही कर लेगी, तब वो अपने वालिदैन को उसकी रजा जानने के बाद उसके घर भेजेगा, तब उसके वालिदैन को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन फिर अचानक किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसकी रूह बिखर गई, उसकी चाहत किसी और की हो जाएगी। उसे दुआओं में मांगते मांगते हमेशा की तरह वो कब जाए नमाज में सो गया, उसे पता ही नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी मामा। शीजा ने खालिदा बेगम को पीछे से हाथों के घेरे में लेते हुए कहा। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा बेटा? एकदम चंगी, शीजा ने करते हुए कहा। और दोनों माँ बेटी हंस पड़ी। मेरी गुड़िया ससुराल चली जाएगी तो कितना घर वीरान हो जाएगा। खालिदा बेगम ने शीजा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, मामा आप भी ना कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं, चलें खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। शीजा की बात पर मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई और शीजा जो अभी भी यूनी से आई थी फ्रेश होने के लिए चली गई। फ़ोन की रिंग से उसकी आंख खुली तो खुद को फर्श पे पाया। कुछ सोचकर सर झटकते हुए वहाँ से उठा और कॉल रिसीव किया। कहाँ हो तुम? कब से कॉल लगा रहा हूँ, टाइम देखो, हमने कितनी कॉल्स की, अचानक से गायब हो गए तुम। शीजा ने बताया तुम चले गए थे, कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अजहान उसके फ़ोन रिसीव करते ही शुरू हो गया हूँ। उसे मेरी तबीयत सही नज़र आ जाती है और मोहब्बत नहीं नज़र आती, आएगी ही नहीं नज़र, खुद ही जो बिगाड़ी है उसने मेरी हालत। शहरी ने तंजिया अंदाज में कहा, क्या हुआ यार, उसने कुछ बोला है तुझे? आखिरी बार तो उसने यही मिलने गया था। अजहान ने कहा, नहीं कुछ नहीं कहा तो कुछ नहीं उसने मुझसे, और ना ही समझ सकी कुछ। शेजी ने अपने नाखूनों को घूरते हुए कहा, तू पागल हो गया है कि क्या क्या बक रहा है? अजहान को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, सही हूँ मैं, और तो शुमाइम को भी बता दे यार, उसकी भी कॉल्स आई हैं, चल बाद में बात करता हूँ, कहते कोई शेरी ने फ़ोन कट कर दिया। हूँ ये इश्क भी ना अच्छे भले इंसान को पागल बना देता है। अजहान ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा, आज पूरे 2 हफ्ते हो गए थे और इन दिनों में शेजी बहुत बदला बदला सा था। कभी वो यूनियन नहीं आता था तो कभी आता भी तो शीज़ा को इग्नोर करता और हर मुमकिन कोशिश करता कि वो उससे दूर रहे। शीज़ा जो उसकी हर हरकत को नोट कर रही थी थोड़ी अफसरदा रहने लगी थी। क्या हुआ यार, एक तो तुम बोलती ही कम थी और आजकल तो ऐसा लग रहा है चुप रहने का रोज़ा ही रख लिया है तुमने। अलीना ने शीज़ा की खामोशी देखकर कहा, यार लोग अपनी आदत दिलाकर गायब क्यों हो जाते हैं, खुद ही किसी की ज़िंदगी में आकर उसका सुकून ले लेते हैं और फिर जब वो इस बंदे के लिए ख़ास हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं तो खुद ही छोड़ जाते हैं। ऐसे लोग क्यों आते हैं हमारी ज़िंदगी में यार? शीज़ा बाहर दरख्तों को देखते हुए कहती जा रही थी। शीज़ा तुम शेजी को पसंद करने लगी हो ना यार, छोड़ो इन सब बातों को, क्या फ़ायदा इन सब का? शीज़ा ने बात टालते हुए कहा। उसने घर आते ही सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा शेजी? उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ हाँ, सारा लाड प्यार तो बेटे के लिए है, मैं तो सुतेली बेटी हूँ ना। सामने से आती हुई अलमास ने शिकायती अंदाज में कहा और फिर शेजी और मिसेज अली दोनों हंस पड़े। अरे आ जाओ मेरी छोटी। शेजी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ कर लो लाड प्यार, वैसे भी 1 साल की मेहमान है अब तुम्हारी छोटी। क्या सच में मामा? शेजी ने हैरत से कहा, जी हाँ, इतने दिनों से तुमसे बात करना चाह रही थी और तुम सुन ही नहीं रहते। कौन है वो बेचारा जिसके पले ये बला जाएगी? शेजी ने अलमास को छेड़ते हुए कहा। भाई, अलमास ने उसे मारते हुए धक्का दिया। अच्छा अच्छा नहीं कह रहा, मामा बताए ना कौन है, बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें याद है हम फिरदौस भाई की शादी में गए थे तो हमारे साथ एक खातून बैठी थी? जी मामा याद है, शेजी ने जवाब दिया। हाँ तो उनका ही बेटा है, एक दफ़ा मिल लो तुम भी, फिर बात पक्की करते हैं। बहुत अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं, तुम्हारे बाबा ने पता भी लगवा लिया है। अच्छा तो कब जाना है? शेजी ने पूछा। आज ही चलते हैं, आगे से जवाब आया। यार आ जाओ ना, आज मेहमान आ रहे हैं, इतने सारे काम है, आ जाओ, थोड़ी हेल्प भी कर दो प्लीज़, और तफरी भी हो जाएगी। चलो रोना धोना बंद करो, काम तो तुमसे होगा ही नहीं, आ जाऊंगी निकम्मी, शीज़ा ने अपनी कज़न से कहा और उसकी मिन्नतें कर रही थी। वो आपस में बातें कर रहे थे, तभी सामने में आती हुई लड़की को देखकर उसका मुंह खुला रह गया। किस्मत ने फिर उसे उसके सामने ला खड़ा कर दिया। वो पिंक कलर की फ्रॉक में, सर पर दुपट्टा ओढ़े, हाथों में नाश्ते का ट्रे लिए हसीन लग रही थी। अरे शीज़ा भी आई हुई है, मिसेज अली ने शीज़ा को देखते हुए कहा। शीज़ा ने वहाँ पर सबको सलाम किया और मुख्तसर सी गुफ्तगू के साथ वहाँ से चल दी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, मिसेज अली ने उसकी तारीफ़ की। ज़ारा की बच्ची, तुमने मुझे उनके
सामने भेज दिया। बहुत बड़ी बदतमीज़। और शीज़ा वापस आती ही अपनी कज़न पर फट पड़ी। शीज़ा शहरी को देखकर ज़्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि उसे इस रिश्ते के बारे में पता था। वो काम से फारिग होकर मोबाइल चला रही थी कि अचानक किसी का नाम स्क्रीन पर आते ही उसका दिल रुक सा गया। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए मैसेज खोला। शीज़ा जी। शहजी के मैसेज के जवाब में शीज़ा ने कहा, मैसेज का रिप्लाई आती उसने फ़ौरन जवाब दिया, एक बात करनी थी। शीज़ा जो पहले ही कन्फ्यूज़ थी, उसके दिल में और हलचल मची। जी बोलें। वो तुम और अलीना अलमास और अत्तर के रिश्ते के बारे में बात कर रही थी, शीज़ी ने हिम्मत करके पूछा। उसके सवाल से शीज़ा उसकी बेरुखी की वजह समझ गई। बेटा तुम्हें तो मैं अब बताऊंगी, शीज़ा ने दिल में कहा। और मैसेज में लिखा, कब यार? जिस दिन मैंने तुम्हें फाइल्स दी थी। उसका मैसेज शीज़ा के होंठों पर तबस्सुम दे गया। ओह उस दिन तो नहीं, उस दिन नहीं तो वो तो मैं। एक मिनट, तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ। शीज़ा के मैसेज पर उसे समझ नहीं आई कि क्या बोले, लेकिन आज उसने हिम्मत ही कर ली थी तो पीछे नहीं हटा। वो इसे पूछ रहा था, मुझे लगा कि तुम्हारा रिश्ता लगा है तुम्हारे कज़न से, सो इसलिए पूछ लिया। हाँ वो दूसरे कज़न के साथ लगा है। शीज़ा अब मज़े ले रही थी। ओह अच्छा, मुबारक हो तुम्हें, शुक्रिया। तुम खुश हो ना? जी बिल्कुल, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? शीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं वो बस ऐसे ही पूछ लिया। शहरी ने रिप्लाई किया, ओह अच्छा, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, वो बहुत अच्छे हैं और तुम्हें आना होगा शादी में, दावत दूंगी, आना ज़रूर। शीज़ा हंस रही थी, लेकिन दूसरी तरफ तो हाल बेहाल होता जा रहा था। जी कोशिश करूँगा, वैसे कब है? दिल पर पत्थर रखकर पूछ लिया। इधर शीज़ा की हंसी नहीं रुक रही थी। 31 फरवरी को। अच्छा चलो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उसके जो जवाब में शीज़ा ने हैरानी से मोबाइल की स्क्रीन को देखा, फिर कुछ लिखने लगी। एक बात बताओ, आगे से जवाब आया, जी तुमने बगैर पढ़े यूनी में एडमिशन कैसे लिया? मतलब आगे से जवाब आया, मतलब ये कि 31 फरवरी आती है। उसका मैसेज देखकर अपने सर पर हाथ मारा। ओ हाँ, 31 फरवरी तो आती ही नहीं है। मतलब तुम मजाक कर रही थी? हाँ तो अभी रिश्ता ही नहीं लगा किसी से और तुम शादी की बात कर रहे हो? ये तो अच्छा हो गया, शहरी ने जज्बात में आकर कह दिया। वाट? शीज़ा की रिप्लाई पर उसने जुबान बाहर निकाल लिया, अबे यार ये क्या बोल दिया मैंने? वो एक्चुअली मुझे कुछ कहना था। शहरी ने बगैर देर किए उसे मैसेज किया, आप कह भी दो यार, और कितना वेट कराओगे? शीज़ा ने उसे हैरान कर दिया था, मतलब तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाह रहा था? नहीं नहीं, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मुझे तो समझ नहीं आता। शीज़ा आज उसे बार बार शौक में डाल रही थी। यार जब पता है तो समझ जाओ ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा। ऐसा थोड़ी होता है, बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? वैसे मैं समझ गई हूँ, यकीनन कोई असाइनमेंट बनवाना होगा, शीज़ा ने हंसते हुए कहा। शीज़ा का मैसेज देखकर शहरी का मुंह बंद गया, जो इससे कुछ और कह रहा था और वो कुछ और समझ रही थी। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। तो फिर क्या कह रहे थे? शीज़ा ने शहरी का मैसेज पढ़ने के बाद हंसते हुए कहा, मैं कह रहा था कि विल यू बी माई लाइफ पार्टनर? शीज़ा शायद मैं तुम्हें कभी कह नहीं सकता, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा, लेकिन आज तुम्हें खाला के घर देखा तो हिम्मत कर ही ली मैंने। तुम्हें पता है मैं 4 साल से तुम्हारे इंतज़ार में हूँ, लेकिन कभी कह नहीं सका। पूरी यूनिवर्सिटी ने मेरी मोहब्बत पहचान ली, लेकिन मेरी मोहब्बत ने मुझे नहीं पहचाना। देखो मुझे गलत नहीं समझना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे हर फैसले में मैं राज़ी हूँ। बस प्लीज़ मेरा ध्यान रखना, ना नहीं करना प्लीज़। मुझे ड्रामू या अफसानों की तरह अपने जज्बात बयान करने नहीं आते, लेकिन आज मैंने अपने दिल की बात तुमसे कह दी। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। शीज़ा को मैसेज पढ़कर कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या लिखे। वो बार बार शहरी के मैसेज को बगौर पढ़ रही थी, उसे कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। अजान की आवाज़ सुनकर उसने बगैर जवाब दिए मोबाइल रखा और नमाज के लिए चली गई। शहरी जो उसके जवाब का मुंतज़िर था, वो भी नमाज में उसे मांगने चला गया, अल्लाह ताला बात इतने आगे बढ़ ही गई है तो अब मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैंने तो हमेशा उससे दूर रहने की दुआ की थी, लेकिन वो मुझसे करीब होता गया। किस्मत ने हमेशा उसका ही साथ दिया, या शायद कहीं ये भी मेरी ख्वाहिश थी। अल्लाह जो भी था, ये तो तू ही बेहतर जानता है। ना चाहते हुए भी अल्लाह वो मेरी चाहत पर गया, मैं उसे अब खो नहीं सकती। वो इशा की नमाज में अपने रब से कह रही थी, तो दूसरी तरफ शहजी अल्लाह को बनाने में मसरूफ़ था। अल्लाह जी प्लीज़ ना उसे हाँ करा दे, आप तो अपने बंदू से बहुत प्यार करते हैं ना, तो मुझे वो दिला दें। अल्लाह आपको तो पता है ना मेरी मोहब्बत सच्ची है और पाक है, और इंशाल्लाह उसे मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आएगा, हमेशा ही पाक रहेगी मेरी मोहब्बत ने। उसने आज अपनी मोहब्बत को पाने की ठान ली थी और अल्लाह ने भी उसकी पाक मोहब्बत का साथ दिया। सुनो, वो जो मोबाइल हाथ में लिए पहले ही शीज़ा की रिप्लाई का मुंतज़िर था, उसका मैसेज देखकर उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। फ़ौरन से कहा, जी कहो तो कब भेज रहे हो? क्या? शहरी ने पूछा। रिश्ता और क्या भाई। शीज़ा मतलब तुम राज़ी हो? हाँ कर दिया तुमने? पहले तो खुशी से उसका मोबाइल गिर गया, फिर खुद को और मोबाइल को संभालते हुए जल्दी से कहा, नहीं मैं तो ऐसे कह रही थी। शीज़ा ने मजाक के तौर पर कहा, जो कि सामने वाले शख्स की सारी खामोशी उड़ा गया। क्या मतलब? शहरी ने फ़ौरन से कहा, अरे मजाक कर रही थी, बताओ भाई कब भेज रहे हो? अम्मी को उसके मैसेज से शहरी की हालत बहाल हुई। तुमने तो मेरी सांस रोक ली थी यार, आज ही बात करता हूँ, बल्कि अभी ही करता हूँ, आज जैसे अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा हो। चलो सही, अल्लाह ने मैंने उससे दूर रहने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, शायद वो मेरी किस्मत में था, इसी वजह से हर बार किस्मत उसे मेरे सामने कर देती है। अल्लाह अब आगे के मामलात में आसानी करना। शीज़ा ने दुआ की, मामा आपसे मुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। शीज़ा ने झिझकते हुए अपने वालिदा से कहा, हाँ मेरा बच्चा बोलो। माशाल्लाह आज मेरी बेटी खुश लग
रख ली है लेकिन थोड़ी डरी हुई है। मामा वो, हाँ मेरा बेटा बोलो, डर क्यों रही हो? मामा शहरी मुझे पसंद है। और उसने अपनी वालदा को सारी बात बता दी। यार ऐशा आ जाओ, आप भी जाओ यार। अजहान ने बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा। क्या क्या है भाई, तैयार तो होने दो। अंदर से आवाज़ आई। एक तो तुम लड़कियां अपने मुंह का पेंट करने में इतना वक्त लगाती हैं, और हम वो अभी कह रहा था कि दरवाज़ा खुला और सामने से ब्लैक कलर की फ्रॉक में आती हुई आयशा को देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। ऐसे क्या देख रहे हैं? कभी किसी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा क्या? आयशा ने अजहान पर एक नज़र डालते हुए अपने बालों को पीछे करते हुए आराम से कहा। वो बेध्यानी में आगे बढ़ रहा था कि माशाल्लाह हसीना। सामने से आती हुई रीदा की आवाज़ से अजहान होश की दुनिया में वापस आया। लो, एक चुड़ैल कम थी तो गीत दूसरी भी आ गई, और तुम्हें पता नहीं है नए नवेले शादीशुदा अफराद के कमरे में नॉक करके आते हैं। अजहान ने रीदा को घूरते हुए कहा। हाँ तो रूम खुला क्यों छोड़ा था? और वैसे भी 2 महीने हो गए। रीदा ने भी चिढ़ते हुए कहा। अजहान देखो सही है ना? आयशा ने अपना फाइनल लुक अजहान को दिखाते हुए कहा। चुड़ैल लग रही, इतनी डार्क लिपस्टिक। अजहान उसे तंग कर रहा था। हाँ रीदा वाकई। आयशा ने कन्फ्यूज होते हुए रीदा से पूछा। तुम्हें तंग कर रहा है? अजहान बहुत प्यारी लग रही हो, रीदा ने कहा। झूठे अपनी ही बीवी से जलते हो, आयशा ने दांत पीसते हुए कहा। अब चलें, बाद में लड़ लेना, रीदा ने कहा। हाँ हाँ चलो, आपके मिजाजी खुदा भी नीचे वेट कर रहे होंगे, अज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर तीनों चल दिए। रुखसत कब करवाओगे मेरी दोस्त की? आयशा ने शुमाइम को कहा। जब वो चारों कार में बैठे थे। निकाह तो कर लिया है, रुखसत भी करा के ले जाऊंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, शुमाइम ने आयशा को जवाब दिया। भाई मेरा हाल देख लें, बेहाल हो जाएगा और गरीब भी, अज़ान ने ड्राइविंग करते हुए कहा। अल्लाह अल्लाह, झूठे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपनी मासूम बीवी पर, शर्म ही नहीं कोई? आयशा ने तपते हुए कहा। देख भाई, मिसाल सामने है। अज़ान की इस बात पर आयशा के गुस्से में शदीद इजाफा हुआ। अच्छा अच्छा बस करो, बाद में कर लेना सारी लड़ाइयाँ, और शुमैम को बहकाओ नहीं। अब की बार रीदा बोल पड़ी, और इस तरह हंसते हंसाते पूरा रास्ता गुजर गया। भाभी जान आप भी आ जाएं, वरना पूरे एल्बम में सिर्फ शहजी की तस्वीरें मिलेंगी, अज़हान ने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा। आ रही है भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? अलीना, रीदा, आयशा तीनों जो शीज़ा को अंदर घेर कर बैठी थी, उनमें से अलीना ने आवाज़ दी। जल्दी मुझे नहीं, शहजी को है, अज़हान ने बहर से कहा। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी ससुराल चली जाएगी। खालिदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें देखकर शीज़ा की आंखें भी नम हो गई थी। अरे अरे आंटी, मेकअप ख़राब हो रहा है, नहीं रोएं शीज़ा। शीज़ा यार देखो, अगर तुम्हारा मेकअप ख़राब हुआ ना तो मैंने तुम्हारे साथ पिक्चर नहीं लेनी। इतना तैयार होकर भूत के साथ तो मैं पिक नहीं लूँगी, अलीना ने इतराते हुए अंदाज में अपने बालों को पीछे करते हुए कहा। उसकी बात पर सब हंस दिया। आ जाओ यार, ये फिर आ गया, आयशा ने अज़हान की आवाज़ पर अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। चलो चलो, उसे भूख लगी होगी इसलिए इतनी जल्दी है, रीदा ने हंसते हुए कहा। और फिर मुस्कुराते हुए सब बाहर की जानिब चल दिए। सामने से आती हुई लाल और ऑन कलर के लहंगे में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी शहजी, जो उसे होश में बेगाना देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं रहा था कि आज उसकी शादी है, और वो भी उसकी मोहब्बत के साथ। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। तो मिस शहबाज, कैसा महसूस कर रही हैं आप मेरी वाइफ बनकर? शहजी ने शीज़ा के करीब होते हुए कहा। ओहो, ये क्या चल रहा है भाई, आप लोगों को पता नहीं है देसी फैमिलियों में दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बात नहीं करते? शुमाइम ने उन दोनों को छेड़ा। फूलों से सजे बेड पर लाल रंग के दुपट्टे से झलकता हुआ चेहरा शहजी के दिल में हलचल मचा दी थी। शहजी के अंदर आते ही शीज़ा का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। वो शख्स जिससे वो दूर जाने की दुआएं करती थी, आज वो उसी के शख्स की बीवी है। नसीब में ऐसा ही लिखा था शायद। शीज़ा की दुआओं से ज़्यादा शहरी की दुआओं में असर था, क्योंकि उसकी मोहब्बत सच्ची थी। अपने हाथों से घूंघट उठाते हुए शहरी की आंखों नम हो गईं। शीज़ा, तुम्हें पता नहीं है, तुम मेरी बेइंतहा दुआओं और सब्र का नतीजा हो। मैं तुम्हें खो देने के डर से अपने दिल की बात नहीं कह सकता था। अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली और मुझे मेरी मोहब्बत से नवाज दिया। कहते हुए शीज़ा के हाथ अपने हाथों में थामते हुए अपने होठों से लगा गया। शहजी, मुझे आपसे कुछ कहना है, शीज़ा ने झिझकते हुए कहा। हाँ हाँ बोलो, अब तो पूरी ज़िंदगी मैंने तुम्हारी सुननी है। शहजी अब भी उसका हाथ अपने हाथों में थामे हुए था। शीज़ा बिल हल्का सा मुस्कुरा दी। वो मैंने ना, वो कहने में झिझक रही थी। अरे मेरे दिल की मलका आलिया, बोल दे, पहले तो सुनाते हुए डरती नहीं थी, अब डर रही हो? शहजी ने हंसते हुए कहा। वो मैं कह रही थी कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ शुक्राने की निफिल पढ़ूं। शीज़ा भी हिचकिचाहट का शिकार थी। बस इस बात के लिए तुम इतना डरी हुई थी? तुम्हें पता है मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि तुम मेरी महरम हो और हम साथ में नमाज अदा करें। शहजी ने उसके चेहरे से बालों को हटाते हुए कहा। और फिर दोनों ने साथ में शुक्राने की नमाज अदा की। सलाम फेर कर शीज़ा ने शहरी के कंधे से सर टिका दिया। शहजी, आपको पता है कि मैं हमेशा दुआएं करती थी कि अगर आप मेरी किस्मत में नहीं तो मेरे दिल में भी ना आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप मुझसे हमेशा और करीब ही होते गए। ओह अच्छा, इसी वजह से इतनी मेहनत लगी। यार मैं तुम्हें मांगता था और तुम मुझसे दूर जाने की दुआ करती थी, इतनी मेहनत कराई तुमने शीज़ा, शहजी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको पता है जब आप मुझे इग्नोर करने लगे थे तो मुझे लगता था कि मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं, लेकिन इस वक्त मेरा दिल ख्वाहिश होने की बजाय पता था, मुझे लगता था कि आपके दिल से मेरी मोहब्बत ख़त्म हो गई
گئی ہے۔ شیزا نے اپنی ہم نشین کے بازو کو اپنے ہاتھوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا، لیکن ایسا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا۔ وہ تو مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم جس کزن کی شادی کے بارے میں بات کر رہی ہو اس کی شادی میری ہی بہن سے ہو رہی ہے۔ کہتے ہوئے شیزی بھی اپنا سر شیزا کے سر پر ٹکا گیا۔ بات کرتے ہوئے انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور صبح کی اذان ہو گئی۔ دونوں نے نماز فجر بھی ساتھ ادا کی اور اس طرح یہ ایک طرفہ محبت اپنے حسین اختتام کو پہنچی۔ محبت کرنا گناہ نہیں، اس محبت کو جائز بنانا ہی اصل محبت ہے۔